So we're all the same characters. The world is the same. And of course, before going on set, it felt like, अरे वो 5 साल गुजर गए हैं. It's been a long time. But the moment, I think I can say this for our entire gang, maybe that the moment we went back on set, the moment we started getting back into the zone of screen, मेरे लिए तो it felt like, अरे it's not been that long. ऐसा लगा कि it's a continuation of the journey of the first part. And very honestly, when you're on set with this group and everyone is just, of course, I mean, as I said, extremely talented, and I just think so excited to be a part of a film like this. You know, very few actors, I think, get to be a part of an entertaining film which has a deeper social message also. So it just felt like not much time has passed, but at the same time it felt like, okay, it is a new journey because now the thread is larger. The characters are moving forward in their own journeys as well. But this has been one of the best films for me, the best group, the best gang that I could be a part of. And you know, I really feel very lucky that they feel like I could have been included in this. Are you anything like a Srika character, is it? You're all looking at I think that there is a lot of mystery around Shraddha. In a good way, of course. सब पूछते रहते हैं कि कौन है आपकी लाइफ में, आप शादी कब करेंगे? वो एलिमेंट है। मिस्ट्री तो है, क्यूरियोसिटी और मिस्ट्री। Always three. तो मतलब आपको याद करने से ज़्यादा Am I anything like her? Yeah? I have to say, or like the character that I get, I definitely have to say that Stree is a very empowering film. So I feel very empowered by the entire journey. I don't know if that answers your question, but I feel extremely empowered by the journey. I feel like the subliminal messaging of the film, even in the first part, I think it's incredible that Dino decided to make a film like this, which makes society think and makes us think in the most entertaining way. So I think that I do feel very empowered, and I do feel very empowered, I have to say. I don't know if Dino knows this and if Amar knows this, but I do feel empowered to be fearless in the kind of films that I want to do as well, and they've actually played a role in this by giving me a film like Stree. Awesome. And before passing the mic, I want to ask you, it's nearly 15 years since Teen Bhakti when we first met. What has changed in the process? Have you changed as an actor? Because कभी आजकल बहुत picking choose करती हैं. There's so much that has, it's been a beautiful time, but I feel like, I feel like there's so much more work I have to do. I don't think I've done very many films, very honestly. So I feel like there is a lot more that I want to do, and I really feel like the best is yet to come, and I feel like this is a very exciting time for me as well. There have been some incredible films that I've got an opportunity to be a part of, and Stree is up there. And I really hope that, I can be a part of more memorable films and do really good work as an actor. I think what you asked, in 2 years, she's been picky. Right? So the fact is, it's going to be worth the wait. Absolutely. I think it's so I don't want to, when you see the film, all the others are known as actors, right? And Shraddha actually has the maximum growth. So when you see the film, you will, they say a star's born, you see a very superior actor. So this is just the beginning. Awesome. And asking you, who's the Nikki and Stree between what you are Who's the? Stree and Nikki between the two of you, because your collaboration goes from Stree and मुझे Stree और Nikki बोलो. Messi. Because मुझे पिक्चर नहीं आती है. Next Independence Day. क्योंकि हमारे को जब भी कुछ काम करना होता है वो उनकी आंखों में बहुत प्यार से देखते हैं। अब बोला कि भले ही हमारी फट रही है मुझे काम तो करना है। Hi, this is Sarika, Chairman and Control
Raj, it's for you. I mean, how different is Vicky this time? How different is Vicky in Street 2? And एक इसका how कौन है, have you इसके grown as an actor from Street 2? Is there also any pressure? Certainly, I've grown as an actor, I feel, because the more you work with better directors, I think you grow as an actor, and that's what my बना aim तो has मैं been भी रही always, to explore different characters, to grow as an actor with every film. So I think certainly there's a growth, and also you have those 6 years of experience of lyric life with the maturity comes in. So everything I think comes together eventually. How Vicky is different this time? I think last time he was talking about peacocks and like more than enough to another. इस बार जो है वो चंद्री का नेता विक्की बावरा पूरा जो चैनल इसका क्या रहेगा या कभी सिंह सुखावंजन इस बार वो अपने to what as he become. But it's more fun. I think certainly I would say all the characters, it's double the fun, double the entertainment, double the threat, and double the canvas. Aishwarya, it's for you here. Yeah, how has Spree 2 been for you from Spree 1 to Spree 2? And how is it different? Your character was earlier a very mysterious character, now it's shown a very powerful now. So how do you see it? And is there a pressure that will Spree 2 be performing so well? Because we're getting the reports that it's doing very well in the box office collection. But how do you manage? You know, for all of us, our characters are the same, as I was saying, and all our characters move forward, the narrative is moving forward, and it is, as I was saying, an extremely special film for me, where you are entertaining everybody and at the same time giving a very, very important message. I think it's similar to what I said before. It's the same world, but the threat is larger, and my character still maybe has that mystery, and just the way in Spree 1, it leaves you with questions. Some questions will be answered in this one, but there will be new questions as well. And about the pressure, I would say, we were really, really happy making Spree 2. We were, as Amar said, we were keenly waiting to be back together on set. We had a lot of fun making it, and the kind of reports we've also been hearing, I think it's a great sign. It's a great sign for cinema, that a film like Spree 2 is coming, which got so much love in part 1, and now we can't wait for all of you to go and watch it, because we are pretty sure that you guys will love it and just make it your own. And of course, as we're talking about the business of the film, the reports, etc., there is no bigger feeling than the kind of love that you get from the audiences and the kind of love that a film gets from the audiences. I think that is the ultimate kind of validation. श्रद्धा है हिमांशु दिस साइड सो ऑलरेडी इस हिस्ट्री पर जो है काफ़ी भार है फिल्म को लेकर, प्रमोशन को लेकर, कई सिटी टूर में आपको इतनी मेहनत करते हुए देखते हैं पूरी टीम को। कल क्योंकि बहुत पॉजिटिव डे है, 15 अगस्त है, लेकिन कल 2 फिल्मों के भार और आपको उठाने हैं, तो कितना टफ आपके लिए होने वाला है आपकी टीम के लिए, क्योंकि दोनों बहुत ही बड़े स्टार हैं, दोनों बहुत ही बड़े जॉनर की फिल्म हैं। तो कैसे आप उस कॉम्पिटिशन को देखते हैं, 3 फिल्में एक साथ एक दिन? मुझे लगता है कि all of us are very excited about any film releasing, and we hope that all the films do well. We hope that people enjoy all the films that release, and यार हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा अगर फिल्में चलेगी, and wishing all the best to all the films, and we hope that people go and watch Spree and enjoy it as well. Hi guys, this is me, Chinmay. I'm here. अगर मैं खड़ा हुआ तो मैं पकड़ा जाता हूँ। आपसे ज़्यादा स्त्री का इस फिल्म का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं जस्ट नहीं, मेरी मॉम भी बहुत बड़ी फैन है, और हम लोग 3 बार चंदेरी जा चुके हैं इसके लिए। अभी पिछले हफ्ते भी हम वहीं से आ रहे हैं, अभी भी आपके प्लेसेस वहाँ पर है, राजा रानी महल, कटी घाटी पे या फिर किला कोठी पे, या फिर ग्राउंड पे जो SFC लिखा हुआ है, सरस्वती फूड कोर्ट, वो अभी भी है। तो क्राउड जो वहाँ पर है वो उतने चाव से बताता है कि ये स्त्री वाले आए थे पिछले साल और वो शूट करके गए हैं। सो हाउ फील गाइस? और मैं सबसे बड़ा फैन हूँ अमर सर आपका, क्योंकि आपने बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म को बनाया है और अपने पूरे कैरेक्टर्स ढूंढे और अपने किया है सब कुछ।
मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, आप सभी एक्टर्स से है कि ये जो फिल्म थी, बिकॉज आई टेक केयर ऑफ द हेल्थ वर्टिकल ऑफ टेनिक साधन ओनली माय हेल्थ, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हेल्थ से जुड़ा हुआ होगा कि ये जो जॉनर है हॉरर कॉमेडी, इसमें एक्टर्स आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहता होगा कि आप एकदम से स्विच हो रहे हैं हॉरर में, एकदम से स्विच हो रहे हैं कॉमेडी में, तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू गाइस to maintain your own mental health and sanity while switching so easily between comedy and horror? I think first of all, I would say that I would absolutely, I second your opinion that we all are Navar's fan. This film is this because of his, the way he made it part 1 and now part 2. We all love it, he's a brother. I think not so much, it's fun. Honestly, like when you do a horror comedy, it's a lot of fun doing that film. Even when you're getting scared, you are getting scared, but somewhere you also know that, it might come across as funny to the audience, like which happened in part 1. There were so many moments where we were getting scared, but people were laughing. So we were very sure that, we have to be aware of the fine balance of the thin line, that it should not become too serious, so it becomes only a horror film. The horror is very real though. But I think that has been taken care of, that we don't take things so seriously that it becomes another film altogether. And after cut, as Amar said, the moment we have cut, we are back in our form and we are back in our senses and we are just cracking some stupid jokes. So I think that really maintains some balance amongst all of us. Also मुझे क्या लगता है कि जितनी भी हॉरर है, हकीकत है, डर है, सब चीज़ों का सॉल्यूशन हंसी है। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि लोग कोई भी इमोशन फील करें, उसके साथ अपने ह्यूमर ऐड कर दे तो वो इमोशन उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। तो मेरे लिए चाहे वो डर है, चाहे वो ट्रेजेडी है, ऑब्वियसली ट्रेजेडी में ज़्यादा कॉमेडी नहीं कर सकते, बट ये मुझे लगता है कॉमेडी हमारी कॉमेडी वैसी वाली कॉमेडी नहीं होती है जिसमें उछल कूद करते हैं। हम सिचुएशन ऐसी करते हैं कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, करते हुए जा रहे हैं, वहीं करते हुए जा रहे हैं, पकड़े रहना, इसमें ही हंसी आती है। एंड देन उसके बाद उसमें सच में कुछ हो जाता है ऐसा, किसी को छोड़ जाता है अकेला। Actually, sometimes I really feel scared for him because the way he starts enacting the scenes, sometimes more energy than us. बहुत Behind now. सही बात। And then you're like, गीत बनाएंगे कैसे करना? बोला नहीं करना। आप अपने तरीके से करो, पर ऐसा नहीं। मतलब मुझे लगता है कि मेरे पास शब्द कम होते हैं बताने के कि दिस सीन है, दिस पोटेंशियल, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि सर ऐसा कुछ करना है, अब आप अपने हिसाब से कर लो। और मैं बोल भी देता हूँ क्योंकि राज को पहले मुझे इंटरनेट में ऐसे बोला यार मुझे कोई एक्टिंग करके दिखाता है, मुझे समझ नहीं आता, तो मैं बोला मैं कैसे समझाऊंगा तो मैं करके देता हूँ ऐसा कुछ करके, ऐसा नहीं करना और औरत का भी फंडा इतना ज्यादा हो जाता है कि इतनी ज्यादा मतलब लोग अंधेरे रातों में करते हैं, काली रातों में इमेजिन करना पड़ता है, एक्टर्स को थोड़ा सा करते हैं, तो मतलब ऐसा भी कुछ हो जाता है कि जैसे मैं और रात एक दिन रात को खाना खा रहे थे और हमें खांसते हुए बंदर से डर, वो बंदर बेसिकली खांस रहा था, हमें लगा पता नहीं कोई आ गया है और लाठी आपने देखा तो होगा। और हमारा कुडोस टू यू मैन, जिस तरह से आप उस फिल्म को रिलीज करके वापस वहां गए और आपने साइड चीजें लगा रखी हैं, ऐसी चीजें वगैरह, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं मेकर की जीत है, बट आई थिंक ये ऑडियंस का प्यार है जो हम यहाँ पर वापस टू लेकर आए हैं, एंड यू आर डेफिनेटली an integral part of the audience, and thank you so much for doing that and going back to Chennai and giving that love there. Thank you. हाय गाइस, मैं रोहित शर्मा बोला था। हाँ, रोहित शर्मा। तो सवाल ये है कि मतलब पवन सिंह का गाना है फिल्म में, तो दिनेश सर से जानना चाहूँगा सर ये गाना कैसे आपने अप्रोच किया पवन सिंह को, क्योंकि बॉलीवुड में भी उनका शायद डेब्यू है, पहला गाना उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में से निकल के बॉलीवुड में गाया, तो आप सब पहले तो पूरी कास्ट को यार क्लोज बहुत जबरदस्त डांस किया सर ने। थैंक यू सो मच। तो ये गाना तो आपको ऑनेस्टली पता हुआ कैसे? हमने गाना रेडी कर दिया था, कल लॉन्च था, तो हम सोच रहे थे कि आवाज कहाँ से लाए, तो एक्चुअली मैंने पवन सिंह को एक शादी में गाते हुए सुना था और वहाँ मैं फिगर भी था मेरे साथ, जो म्यूजिक डायरेक्टर
उसने नाम लिया तो बोला कल लॉन्च है। हमें पवन सिंह जी से मैं कभी मिला नहीं हूँ, उन्हें क्रेडिट देना पड़ेगा। हमने रात को फोन किया, सुबह डब हुआ और रात को लॉन्च हुआ। और हमें ऑनेस्टली मालूम नहीं, हमें मालूम था कि वो एक बहुत बड़े स्टार हैं वहाँ, लेकिन इतने बड़े स्टार हैं ये हमें लॉन्च के बाद मालूम पड़ा, क्योंकि उन्होंने जैसे इस गाने को स्त्री को अपनाया, बिकॉज श्रद्धा और राज गए थे, मैंने 2-3 क्लिप्स देखी, उन्होंने इतना प्यार किया है। और मैंने रियलाइज किया कि नॉर्थ की एक खासियत है कि जब प्यार करते हैं ना पूरा दिल खोल के करते हैं, कंजूसी नहीं है उसमें। तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ, बिकॉज आईने को अगर वो नहीं आते तो आईने आई नहीं होती। सो कोई इन पिक्चरों में हर गाने की किस्मत होती है, तो वो हमेशा लास्ट 24 घंटे में निकल के आते हैं। और ये ऐसा बैठा है कि मेरा जो 2.5 साल का बेटा है, वो आज राज को मिला तो वो उसको बोल रहा था, ये बोला मेरे को ना क्या काका बोला काकी की बुला रहा है राज को, तो वो काटी बोल रहा था। So that is the power of good music. So I judge music with how my children react to it, because I feel they are the most honest. So if he likes a song, generally it goes through the roof, because it's that simple. So yeah, thank you to Pawan Singh ji for स्त्री को 4 चांद लगाने के लिए, and thank you for Raj for becoming काकी of this. I miss Kaki. Where is Kaki? अच्छा सर, I want to add to that कि मैंने श्रद्धा ने लाइव विटनेस किया है that पवन सिंह जी is truly a power star, उनको बुलाया जाता है। हमने वो फ्रेंजी देखी है, हमने उसका पावर देखा है, पावर देखी है। And also want to add here because आपने सही एकदम सुना, I think तीनों की दिनेश की कमाल की खासियत है कि वो जिस तरह चीजों को देखते हैं, like this was a great idea of thinking let's have Pawan Singh to this song a night before. तो I think that's why I think बहुत सारे लोग आज उनको गोल्डन बॉय ऑफ इंडस्ट्री बोल रहे हैं कि वो जो भी टच कर रहे हैं वो सोना बन रहा है, टच को डायमंड नहीं बन रहा है। And I think it's his vision also, the way he sees things, the way the kind of confidence he has on his films. Not that you could like, yeah, but ये वाली film and he's like, no, I have faith in this film. I'm going to put it out there, and it works for him. I don't know how he does it, but it's great how he does it. I also want to add to that because I don't know any fearless maker like Binu today. उन्होंने मुंजा जैसी फिल्म रिलीज की है, which is with newcomers, a VFX character, and someone to have faith in that content. And that film has gone and won the hearts of people and done the business that it's done. So to be a part of a production house like Maddock, where they have that blind faith कि मतलब हमें content में believe करना है, लोगों को entertain करना है और उस पे खड़ा उतरना है। तो I feel कि जो fearlessness है in Binu, in the team of Maddock, in Amar, it's incredible to be a part of that journey as well, because that way you are staying true to entertaining the audiences. A film like Muncha has come and done what it has done, so it's incredible. And I think एक ही इंसान को म्यूजिक सेंस भी करेक्ट हो, नंबर सेंस भी करेक्ट हो, पैकेजिंग सेंस भी करेक्ट हो, और ये सब एक साथ होना एक ही टाइम पे एक इंसान मुश्किल है। सबको पैसे पहुंचे। And you are not saying about something. That was interesting what you said about the money aspect, but also your collaboration with Geo Studios starts from Stream 1. So what has that been like, and going forward, what can we expect? Geo, Yeah. I will be ready. Sriga will be ready. It was a nice partnership. And Jyoti Deshpande on the launch at Polo Red. So I feel she's one Stree who has really added. इससे पहले जब आई थी उसमें आई थी स्ट्रीट डांसर थी, आई थी आज से शायद 5-6 साल पहले, 5 साल पहले इतनी बड़ी तब जीन्स वगैरह पहन के ना तब इतनी क्यूट लग रही थी। मुंझा की दीदी है ना, मुंझा की दीदी मुंझा की। Hi everybody, this is Ashika from Hi. ABP Hello. Entertainment Line. मेरा पहला सवाल राज और अपार आपसे है। स्त्री के लिए बहुत कुछ बोला जाता है कि अगर वो आपकी लाइफ में है तो हैंडल करना बहुत मुश्किल है एक स्त्री को एंड ब्ला ब्ला। आप दोनों की लाइफ में स्त्री है। वो पर्सनल है। हाँ। क्या सच में स्त्री को हैंडल करना इतना मुश्किल
दोबारा से रात अलग से इस पे प्रकाश डालेंगे इस बात पे, लेकिन मैं ऑलरेडी अगर दोनों की तरफ से बात बोल सकूं तो आई थिंक हम दोनों की लाइफ में जो स्त्री आई, पत्रलेखा इनकी लाइफ में आती थी, मेरी लाइफ में, आई थिंक सिंस देन एक आप शुरू से आपने टैलेंट होता है, हार्डवर्क करने की इच्छा होती है, यू आर चेंजिंग योर ड्रीम, लेकिन थिंग्स कभी ना एंड बीट नहीं हो रहे होते हैं. The moment somebody comes into your life and just completes everything, I think वही जो आप कह रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूँ, मतलब शुक्र है वो हुआ, शायद पहले हुआ तो शायद और बेटर चलनी चल रही होती. So that's what whatever little I have achieved in my life, उस स्त्री का बहुत बड़ा हाथ है. उस स्त्री की एक उंगली मैं भी पहन के आया हूँ उसे. So she's here and now I have another स्त्री in my life who is my 3-year-old daughter, and that's what I think God has been like. I think both of us, again, speaking on both of us behalf, but I think we've been so lucky that we found such amazing women in our life. And there's nothing more beautiful than love. Just being in love and just keep falling in love every day again and again with the same person. It's the most beautiful feeling. And today I'm sitting here is because of her, because she keeps me grounded, she keeps me there, she guides me well. She is my strength, she is the love of my life. So yeah. ओके, श्रद्धा, मेरा सवाल आपसे है. बोला गया है कि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, तो क्या आप अपनी वो स्त्री की पावर यूज करती हैं बार्गेनिंग और अपनी बात मनवाना सबसे? 100%. मैं प्रोड्यूसर हूँ, 100%. अगर श्रद्धा को कुछ कराना है, वो स्त्री को कुछ भी करा सकती है, वो आपको कन्विंस करेगी, ऐसा मुझे लगता है. और इतने प्यार से कन्विंस करेगी, वो शक्ल भगवान ने ऐसी की है कि आप बोलोगे हाँ यार ठीक है, करेक्ट ही बोल रही होगी. I think being a woman in itself is a superpower, and I feel like it's a film like Stree also, to have a film that is called Stree is very empowering. I think for me, for women around as well. And so I just feel like, I don't know if this answers your question, but I feel like being a woman in itself is a superpower. डेफिनेटली. अभिषेक, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा. आपकी 2 फिल्में रिलीज हो रही हैं. आपको क्या लगता है कौन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाला है? ऑल्दो आपने 100% दिया है. हाँ जी, बताओ. मैं तो आपकी तरफ हूँ. नहीं पता है एडवांस बुकिंग में क्या चल रहा है, पर मैं आप नहीं चाहूँगा कि दोनों फिल्में चले. एडवांस बुकिंग में हमको सबको पता है कि किसकी ज्यादा कमाई होने वाली है. आपने देखा, हमें बोल रहा है, मतलब स्त्री इसकी नहीं है. अरे मतलब आपको देखा, आपको कमाई, ये बोल रहे हैं कमाई तो आपकी होगी, बट यार चलनी तो सारी फिल्में चाहिए कि आई थिंक थिएटर्स का वैसे भी बहुत टाइम से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि लोग थिएटर तक नहीं आ रहे है ना. हम हमेशा बात कंप्लेन करते हैं कि यार ऑडियंस थिएटर तक नहीं आ रही, और हमारा पूरा इंडस्ट्री जो है वो सफर करता है अगर पब्लिक थिएटर्स पे ना आए, क्योंकि बहुत एक वैसा कल्चर शुरू हो गया है जहाँ पे लोग OTT पे वेट करते हैं कि आज तक रिलीज हो जाएगी, कोई बात नहीं, 1 महीने बाद OTT पे आ जाएगी, वहाँ देख लेंगे. बट मैं जनरली बोल रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस आपको थिएटर में जाके फिल्म देखने का होता है, जहाँ आपको कोई घंटी नहीं बजी फोन की, कोई आपको डिलीवर करने नहीं आ रहा है, आप बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे इंस्टाग्राम से, वो पूरे सराउंड सिस्टम के साथ आप फिल्म देख रहे हैं उसकी दुनिया में, जिसके लिए डायरेक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं वो वर्ल्ड में लेके जाने के लिए ऑडियंस को. तो आई होप कि मतलब इतनी सारी फिल्में रिलीज हो रही है, इससे वापस पब्लिक का जो हुजूम है वो थिएटर्स तक आए और हमारे इंडस्ट्री को और पैसा मिले. On a serious note, 15th August is such a big date that it has the capacity for everyone. And if you go to Book My Show, everyone has shows. So it's ultimately a day where people want to go out, they want to go to the cinema, and I feel they are all 3 different kinds of films, offering 3 different. It's like going into 3 different reviews. So there's an opportunity, and I hope for the audience and for the industry, say call to them. Hi, Sonali from Zoom. Hi, Sonali. First of all, thank you so much. So many congratulations for Stree 2, and we are really looking forward to this. बहुत वेट कराया
6 साल बहुत लंबा टाइम है, बहुत वेट किया है हमने जनरली, बट वी आर रियली एक्साइटेड. लेकिन one thing I would like to ask, and this is for all 3 guys here, Apar, Abhishek and Raj. आप लोग नहीं और भी एक्टर्स हैं, आप लोग तो मतलब हमारे पिक्चर में एक्टिंग कर रहे हैं, हमारे इज आल्सो पार्ट ऑफ द कास्ट. डेफिनेटली ही तो शो ना हाउ टू एक्ट. और मेरा रोल करते I would really like to ask कि पहले ये होता था कि एक्टर्स जाते थे, शूट करते थे, and they were like घर आ गए and they're on to another shoot. But the level of bromance you guys started with 3-1, the 3 of you, and in fact the 4 of you, because श्रद्धा का भी वो थोड़ा बीच में वो आ जाता था, इनका laugh is really infectious. Oh my God, Shraddha's laugh is really infectious. But generally the level of bromance you 3 have started, how does it make you feel? क्योंकि शुरुआत आप लोगों ने कर दी थी, वो जो एक हम लोग हजार रुपया वाला लेवल दोस्ती का देखते थे ना, उसको वापस इस जनरेशन में लाने वाले आप तीनों. तो how does it make you feel? Thank you so much. अंदाज अपना के साथ टचोड़ हमारी बढ़ावी हो रही है. You know, honestly, ऐसा हर बार नहीं होता है कि you get such amazing co-actors who become your brothers. And स्पीक की जो backbone है वो उसकी friendship है. You know, बिट्टू, जना और विक्की की जो दोस्ती है वो एक बहुत important factor है फिल्म का. And I'm so glad you know we have Abhishek and Apar in the film because it wouldn't have been possible otherwise. Because none of us are insecure, none of us are jealous. You know, there's nothing negative in our friendship, in the way we approach a scene or the way we approach our work or the film. I think that's why you see that romance because we genuinely love each other in life. You will never see a film set. I'm so sorry. You will never see a film set where 3 actors are standing in front of the film and saying this to each other. Do you like it? You will never see a unit like that. And I think जो romance है, that's what Thank God someone said it. तो आप दोनों मिलके अभिषेक को लड़की दिलवा रहे हैं दोबारा. I mean अब वो ही रह गए. तो I think next time ये होना चाहिए कि जैसे आप दोनों से पूछा ना next week. आपकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए. पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हो कि फिल्म की? नहीं मैं फिलहाल तो पर्सनल है. अरे वो शादीशुदा है, ये शादीशुदा है. ऐसे नहीं ना होगा. जो स्त्री वाला जो सबको बहन बना रहे हैं सबको गलत. नहीं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सिर्फ टीना के साथ ही रहे. वो सबको वाइस नहीं वो श्रद्धा नहीं बना रहे तो वो सिर्फ टीना के साथ रहे. बिल्कुल झूठ मत दो इसको. ऐसा उसकी गलती नहीं. मैं एक्चुअली बोलना चाहूँगा जनरली ये हमारी दोस्ती ऑफ स्क्रीन पर भी मुझे लगता है इसलिए इतनी गहरी है क्योंकि शायद मैं अपार को कभी अपार की तरह नहीं बिट्टू की तरह देखता हूँ, राज को हमेशा विक्की की तरह देखता हूँ और आई थिंक हम ये दोनों मुझे जना की तरह देखते हैं क्योंकि मैं हूँ नहीं जना जैसा रियल लाइफ में और काफी इंटेलिजेंट आदमी. बट आई थिंक इसलिए हमारी दोस्ती गहरी है. जना को भी लगता है वो इंटेलिजेंट. I love this reaction. बट मैं ये बताता हूँ सच में हम लोग डायलॉग लेके जाते हैं बोलते हैं आपस में बात किसको क्या बोलते हैं और ये लोग थोड़ा बहुत होता है कि ये है पर आपस में जब एक पे जाते हैं तो लगता है अरे ये लाइन बिट्टू को बोलनी चाहिए बट बिट्टू बोलता है नहीं ये वाली लाइन जना को बोलनी चाहिए. आखिरी सब जना ले हंग्री है ओवर हंग्री. आपके सवाल का जवाब मिल गया आपका दिल मंगल देखो. Alright guys, last 2 questions. Hello. This is Monica from Live Hindustan. मेरा क्वेश्चन श्रद्धा से है. हमने स्ट्रीट का एक गाना देखा जिसमें वर्ल्ड कमल के साथ भी है और राजकुमार के साथ भी है. अगर रियल लाइफ में किसी गर्लफ्रेंड बनेगी तो आप कैसी गर्लफ्रेंड बनेगी? रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग? I think I am the most correct kind of red flag. And it was amazing by the way to be a part of that song and to be a part of their vision of media स्त्री में स्त्री या in the horror comedy universe जैसे I was in Kunkeshwari also. So I think this is a larger plan of Maddox's horror comedy universe where all the characters will hopefully be in each other's films. And we will have our own massive horror comedy universe, which is such
such a proud moment, I think, for India. And to answer your question, you know, actually क्या होता है कि when you're growing up, लड़का girls and boys who sit and you make a list, correct? कि मुझे ऐसा partner चाहिए, मुझे ऐसी girlfriend चाहिए, ऐसा boyfriend चाहिए. But the list that I make is what kind of a partner do I want to be, and what kind of qualities that I want to have. And that is what I focus on, that you know, I want to be the best kind of partner because I fully believe in a fairy tale romance and I would want to be the best partner for my partner. इसीलिए दोनों पीछे पड़े, तो she's become the best partner. Hi everyone. First of all, we should all give a very huge round of applause कि स्त्री वापस आ रही है और इतने अच्छे दिन पर जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन स्त्री 2 भी जो है थिएटर्स पर आज़ाद होगी. माय नेम इज़ मनीषा, आई एम फ्रॉम आज तक. मेरा सवाल बिट्टू और जना से है. रोमांस की तो बात हुई बट मैं आपसे पूछूंगी कि कितनी मेहनत लगी कि आपकी जो विक्की जी है वो इस बार चंदेरी के देवदास या सुगा वर्जिन ना रहे. कितनी मेहनत लगी है. ऐसा क्या बोल रहे हैं? सुगा वर्जिन आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा. फिर आई थिंक अगर कैरेक्टर की बात करें तो जब तक वो कैरेक्टर की बात तब तक वो ऑडियंस के लिए एक्साइटिंग है, तब तक वो ऑडियंस के लिए और एक्साइटिंग है. तभी आई थिंक वैसे बुलडॉग्स निकलेंगे जो बैक टू बैक यू नो स्त्री 1 या स्त्री 2 में आपने आंसर सुने. बाकी पार्टी स्टार्ट ऑफ है तो अपनी परफॉर्मेंस से सेकंड वर्जन लेते हैं. नहीं अरे स्टार्ट ऑफ है तो सॉन्ग का मतलब बता क्या मतलब है. कूल वेयर इज कूल. तो इसलिए परफॉर्मेंस से वो कभी सेकंड वर्जन लेते नहीं. सो बट जना आपका क्या होगा? आप तो हमेशा बहन ही कुछ नहीं होगा. मैं सच बताऊं, मैंने बोला है कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना. इतना अच्छा लड़का है, ऐसा सुशील लड़का है. जना मतलब चंदेरी में कोई तो होगी, कोई तो होगी जिसको जना पसंद है. मिलेगी तभी वो गाना नहीं बना. पूरी उम्मीद है. एंड सीरियसली मैं जो है पंकज त्रिपाठी सर को बहुत मिस कर रही हूँ. मैं वेट कर रही थी कि काश वो भी आते, आज हम लोगों के बीच में होते. वो अपना फोन मिस करते हैं. डेफिनेटली वो करते हैं. बट congratulations to all of you and all the very best. हम चाहते हैं कि अच्छा रिस्पॉन्स. थैंक यू. Hi all of you. I am Artis Nag from NBC Bharat. Sorry, where are you? पूरी टीम को मैं congratulate करती हूँ कि आप पृथ्वी कॉमेडी से हमारे लिए इतनी कॉमेडी हॉरर मूवी लेकर आ रहे हैं. ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो चुके हैं. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पीछे 3 कब लगता है? मैंने तो थैंक यू और ब्रेक कर दिया. थैंक यू. स्त्री 3. सो एक्चुअली इस बार वक्त इसलिए रखा कि हमने पहले स्त्री 3 ली कि ज़्यादा टाइम आपको रुकना नहीं पड़े, फिर स्त्री 2 ली. बट आई थिंक स्त्री 3 विल कम 3 years later. सर एक क्वेश्चन मेरा और है कि जब आपकी टीम शूट करती है और इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस है साथ में, तो कॉमेडी या हॉरर करते वक्त कोई ऐसा किस्सा है जब आपको खुद हंसी बहुत आई हो या डर लगा हो? डर तो लगता है जब भी कोई ऐसा हॉरर सीन करते थे तो हमको बहुत डर लगता था. बिकॉज हमारी जो लोकेशन भी थी वो ऐसा वहाँ से कई बार ऐसी वाइब आती थी कि कुछ हो सकता है. बहुत बार अकेले जाना होता है किसी गैलरी में शॉट देने के लिए, तो लगता है अरे बहुत दूर निकला है, जल्दी बोलो कोई नहीं है आसपास. तो वो डर की फीलिंग रहती है. वो कभी वो स्क्रीन पे भी दिखती है. अच्छी बात है. वो आगे बहुत हंसते हैं हम लोग यार. बट वो आपने वो गाना लिखा है तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तो मुझे वो बड़ा फनी लगता है कि इमोशनल मोमेंट में स्त्री उसको उंगली काट जाती है. उसके बाद अभी अमन कुछ नहीं होगा जो मैं बोलूँगा ये टूटना चालू कर देता है. लव बाइट. अभी हमें जो डिस्क्लेमर खुद देके हटे. बट प्लीज आप स्पॉयलर्स मत दीजिएगा. अब ये लोगों से बात करिए, बोलिए सबको प्लीज स्पॉइलर नहीं दे. बड़ा मजा आएगा एकदम से आपके सामने कोई चीज अपीयर होगी, दिखेगी, तो वो उनको भी फील करने दीजिए, उनको भी वही मजे लेने दीजिए. तो प्लीज स्पॉयलर्स मत दीजिए. और बहुत हंसे थे हम लोग यार. जनरली बहुत हंसे थे. बहुत मस्ती होती थी. स्पेशली अमर जो हमारे डायरेक्टर है, कितनी बार जो है हमारे साउंड डिजाइन बोला पड़ता था कि सर एक और देना पड़ेगा, आपकी हिलने की हंसने की आवाज आ रही है. अच्छा मेरा एक सवाल है कि स्त्री 2 का सबसे बड़ा अट्रैक्शन, स्त्री 2 का सबसे बड़ा अट्रैक्शन सर कटा.
सर कटा तो नहीं, एक्चुअली जो थ्रेट है हमारा सर कटा, वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। So हम एक्चुअली आज हमारे साथ पंकज जी नहीं है और सर कटा भी नहीं है। You should also आपके नजरिए में पंकज जी सर कटा तो नहीं है। नहीं बस मैं पूछ आपको सर कटा जो आपने पूछा था याद है एक सवाल के जो एक नहती व्हाट्स द वर्ड क्रेजी आदमी सोच सकता है जो सर कटा इसने बनाया है ना, जब आप स्क्रीन पे देखेंगे ऐसा आई डोंट किधर भी है, आई डोंट थिंक आई इज देयर अ रेफरेंस इन इंग्लिश, आई डोंट थिंक सो, और वो इतना हाईलाइट है। सो आप इसे तो सर कटे के तो स्पेशली कोई स्पॉयलर्स मत देना, वो कौन है, किसका रिश्तेदार है। बस ये ओके लास्ट क्वेश्चन कंट्रोल तो बस ये प्लीज स्पीक में बैठ के तुम रेट कर सर कटा हैज एन इक्वेशन चैनल। वो तो भी होता है, वो चैनल ये मत बताओ, नहीं पता ये सब बाहर नहीं आना चाहिए। Hi everyone, this is Kirti. और देखा कैसे क्या बात करूँ तो हाय हाय मैम। My question is for Shraddha ji. Post pandemic की आपकी दूसरी फिल्म है, तो आप स्क्रीन से इतना दूर क्यों है? As a fan, you miss you on screen. Why is that? But Why, sir? Why? We really want to know. see, I want to do the best kind of films, like Stree, and I feel like as an actor also, I want to be play characters that make me feel like मैंने ऐसा कुछ पहले नहीं किया है, and a lot goes into making a film, you know. So I want to do a film for the right reasons. I want to play characters that I have not played before. I want to be a part of films that people will remember and say कि वो अच्छी पिक्चर थी. So जब तक मुझे वो फीलिंग नहीं आती ना, मैं पिक्चर नहीं करूँगी. तो अब स्त्री आ गई है और इतना प्राउड फील हो रहा है that I can say that I am a part of such an incredible film. So I need to feel this way whenever I'm doing a film. Thank you. Hello everyone, this is Simranpreet Swani from ZeeMedia.com. First of all, you all look great in the video. So I want to know that this movie is about supernatural powers. So I wanted to have you encountered ghosts in real life. Once I went to Abhishek's room, वो सो के उठा था, और मैं काफी डर गया। मैं तो सुबह ही उठ गया। ये दोनों रात को साथ में सो गए। तो आई थिंक अब वो थोड़ा स्केरी था, लेकिन जैसे हमने कहा वो मालूम है बहुत टाइम लेता है, तो मैंने उसके ओरिजिनल बात देखी, लेकिन टाइम बिना लिया है। तेरा हेयर स्टाइल इसलिए यूज कर रहा है यार, इसलिए No, I think on Stree when it happened, of course, we had some kind of experience, like a spooky experience. But on Stree's post set, I think it was more fun, you know, than having spooky experience. And also, I feel somewhere ghost ने भी शायद हमारी को देखने को लगता है ये तो अच्छी फिल्म बनाता है, नहीं करा से. तो this like to film बनाओ. जब मैं दिल्ली रहता था तो 3:30 बजे रात को गुड़गांव से वापस आ रहा था और ये GK1 GP2 का जो फ्लाईओवर है, ये एडिटिंग हो रहा. सविता से मुझे भी देखी. यार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट समथिंग हमारी हॉरर फिल्म आई और किसी ने सवाल पूछा तो मैं बोल देता हूँ. मैंने सच में वहाँ किसी को देखा था और वापस में यूटर्न लेकर आया उसको ढूंढने के लिए वहाँ. वो यूटर्न लेके क्यों आया मुझे समझ में नहीं. एक तो यूटर्न लेके क्यों आया तो कंप्यूटर ढूंढने निकले वापस वहाँ. पिक्चर तो ऐसी बनती है कि दोबारा देखने जाते हैं कि क्या हो रहा है. तो नहीं कोई नहीं जाता. तो क्या उसको लग रहा है भूत है तो आगे से यूटर्न लेके आए. मैंने चेक करने का सच में था कि नहीं. तुम लोग चेक करने का भूत को लेकिन था कि नहीं कि मेरी आंखों का भले था. आज तक क्लियर नहीं होगा. आज तक क्लियर नहीं होगा. सो यार पर ये था ना, आई थिंक जीके वाले क्रॉसिंग पे होती थी है ना. ये सच है क्या? बहुत स्ट्रांग है. पक्का पक्का वो बस सफेद सर बाल भी सफेद है. रियली इज नॉट दैट स्टोरी कि यार वहां पे सबको डराएंगे बोल के रात को सारे दोस्तों को बिठा के. ये ऐसा हुआ है.